सो हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग अगेन अ वीडियो. सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई आई वाज नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो ऑन फॉरेक्स. एंड आफ्टर दैट, इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव अ ट्रेड recap of my today's trades, the last trade in this year, which was in Nifty options. And I took some did some option buying today, and in that we have booked somewhat around this 8,000 rupees today. And I will be giving you a trade recap for it. So firstly, to the start, I'm not trading gold for this whole month because in gold I see that price action is very trappy. And if it is trappy, or else I am not able to execute in the markets. But usually they say that in the month of December के महीने में जो भी स्मार्ट मनी रहते हैं और एनी हेज फंड मैनेजर्स which are the market movers, they are usually not trading in this month and they are on vacations or something, it is said like that. But and that's why the gold is very choppy and not having a very good price action in this month. So I will be continuing, I will starting forex trading from the next week or after that, in after January. And then I will be giving you the trade recaps of forex. And currently that funded account is at 5% drawdown, so I will be trying to recover and pass it as soon as possible. So today we are going to talk about my trade in Nifty. Okay, so firstly we will check the time. At 10 a.m. we executed 23,500 put at the price of 104, and at 10 a.m. means we were on the short sell side. Okay, we have bought the put. So if we come to the weekly chart, we'll determine a bias first. How I thought of determining a bias. So here we see a fall, after that retracement in the order block, and after tapping the order block, market a drastic sell off. And उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक जो इम्पोर्टेंट लेवल कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम बैलेंस है. बस दिस इज द इम्पॉर्टेंट लेवल एज पर द वीकली. आफ्टर दैट अगर हम डेली में आए तो ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद जो मार्केट है यहाँ पे नीचे आया. एंड ऑफ कोर्स अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, वीकली में ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम एट दिस ऑर्डर ब्लॉक, which is the last POI in the whole leg. And usually we could see we could see here that this is if we put on the dealing range, we could see the market, the POI is in the discount. And whenever market comes in discount, we have to buy from the discount side. Okay, there is a different thing that market will tap this volume imbalance of the weekly time frame or not. It depends on how the price action is reacting at this point. If market shows some displacement and FVG tap, and we would like to get this low resistance liquidity and till here. But if market doesn't support this and goes and take this liquidity, we are easily expecting the market to tap in the volume imbalance, which is marked in the weekly. So for now we were having the bias till this level. Okay, these were our bias as per the for the week while trading today. So if we come to the hourly chart, what I saw is these two candles were not in my side. Okay, so first thing I saw is that market is in this order block, this huge order block plus FVG. Okay, market tapped in it, and after that market was pushing to the downside. So if we go to the 30 minutes time frame, we could clearly see we have marked this order block area. And after that यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको हम रिफाइन करेंगे तो ये हमारा बनता है एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक. सो इसमें टैप किया था मार्केट ने टैप करने के बाद नीचे आया. उसके बाद फिर से इस लेग के लास्ट पीओआई को मार्केट ने टैप किया. एंड उस पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट ने एक सेल ऑफ दिखाया. और सेल ऑफ दिखाने के बाद हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट was consolidating. Market took the sell side liquidity. After the market took the buy side plus internal liquidity, and we could easily target now to the external range liquidity also. With this mindset, I this is the mindset which I was having without knowing the picture of the front in the front. Okay, this is what I saw in the morning. Okay, in the first 30 minutes. And when I saw this picture, that 15 minutes will come. Okay, when I saw this in the at the opening, market was gap down, और gap down होने के बाद मेरा यही बायस था कि मार्केट इस लेवल को इस लेवल की लिक्विडिटी लेगा. एंड मार्केट ओपन होते ही उसको टैप कर देते हैं. सो एट दिस पॉइंट मैंने मेरा
जो प्लान था वो चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? बिकॉज आई न्यू कि ये जो है यहाँ पे एक ऑटो ब्लॉक है। ओके, आई विल पुट अ नेम, इसको हम ऑटो ब्लॉक लिख देते हैं यहाँ पे। एंड हमें पता था कि ये एक ऑटो ब्लॉक है। सो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी लेके ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा? पहले ऑटो ब्लॉक टैप करेगा। सो फॉर दैट रीजन मैंने वेट किया एंड 10 PM 10 AM को हमारी एंट्री हुई थी। सो दिस 9:30 35 40 50 एंड यहाँ पे इस कैंडल पे देखो ये ऑटो ब्लॉक टैप हुआ, रिजेक्शंस दिखे, उसके बाद फिर से इसकी लिक्विडिटी ले गई। और अगर हम 1 मिनट में आते, सो ऑटो ब्लॉक टैप हुआ, ऊपर गया मार्केट। यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान कर रहा था क्योंकि डेली पीओ आया है, ये सोच के मैंने बाइंग का भी प्लान किया। बट ये जो एफ वगैरह दिख रहे थे मुझे, सो मार्केट ने क्या किया, एक पुश दिया इस साइड। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ तक गया एंड मैं एंट्री करने वाला था। बट व्हाट आई थॉट इज कि और एक स्पाइक आएगा और रिट्रेस करेगा, और जब ये कैंडल एफ बन जाएगी तब मैं एंट्री लूंगा। बिकॉज यहाँ पे एंट्री लेना रिस्की है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट ने ओबी टैप किया है ऊपर का, और ये जो पीओआई है ये इतना बड़ा पीओआई है। सो मार्केट इसमें से कोई चांस नहीं कि यहाँ पे टैप करते ही ऊपर चला जाएगा, या फिर यहाँ पे आके ऊपर जाएगा, या फिर पूरा जा नीचे जाके ऊपर जाएगा। वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। सो हमें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वर्क करना है, जो 15 मिनट के हायर टाइम फ्रेम पे आएगा। मिड लेवल टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट की, अगर डेली का पे है तो हमें 15 मिनट पे एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना चाहिए। सो व्हाट आई सॉ इज कि यहाँ पे हुआ रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन होते ही, जब ये रिजेक्ट हो रही थी कैंडल एट, ये देखो यही इसी कैंडल पे रिजेक्ट होते ही मैंने इसमें ऑर्डर पंच कर दी, पुट मैंने बाय कर लिया एंड दिस इज इट हाउ इट वेंट। सो यहाँ पे आने के बाद, सो आई विल शो यू। ओके, 104 पे हमने बाय किया, और बैंक निफ्टी में हमने सेम टाइम पे बाय किया पुट एट 10, सॉरी 2 मिनट बाद हमने बैंक निफ्टी में बाय किया। एंड उसके बाद 10 2 को हमने बाय किया, एंड उसके बाद 10 10 पे, और हाँ 10 10 पे हमने दोनों बुक कर लिए ट्रेड्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी। एक एक लॉट भी हमने बाय किया था। सो आई विल शो यू। ये देखो ये फॉल आया, और हमने बुक किया 10 10 बज के 10 मिनट हो गए, देखो इसी कैंडल पे हमने बुक किया। एंड उसके बाद थोड़ा सा ही मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अभी ये जल्दी क्यों बुक किया? आई विल शो यू हियर इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की सेम एनालिसिस है, बट आई विल शो एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने सेल किया बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को। ओके, यहाँ पे भी एफ था। एंड इसका टारगेट मैंने स्मॉल क्यों रखा? क्योंकि ये जो है लेवल ना, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, विच वॉज एन वॉल्यूम बैलेंस लेवल। सो इसको मार्केट ने टैप किया, एंड एज सुन एज द मार्केट टैप्ड इट, मार्केट रिवर्स फ्रॉम हियर। सो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज की जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा सुबह सुबह 2000 3000 रुपीज, वो मैं बुक करके आई विल क्लोज द डे। सो यही मैंने सोचा था। So I exited my trade at this point without any risk and of holding till here or anything, because this was a important level. And overall Nifty और बैंक निफ्टी दोनों भी एक अच्छे POI में थे। So coming back to Nifty again, so अगर हम देखेंगे तो ये था, ओके ये थे हमारे फर्स्ट 2 ट्रेड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हमने एग्जीक्यूट किया, जस्ट ओके, सो नेक्स्ट वन हमने जो एग्जीक्यूट किया था वो था 11:04 पे, निफ्टी में लिया था उसको। एंड वो भी था एक्चुअली, वो उसमें फर्स्ट मैंने एक लॉट ऐड किया, एक लॉट खरीदा, उसके बाद मैंने 2 मिनट बाद और एक लॉट ऐड किया, और उसके बाद 150 क्वांटिटीज टोटल हमने एग्जिट कर दिए। सो अगर हम आएंगे यहाँ पर तो 11:04, यहाँ पे, ओके यहाँ पे बराबर। ओके, दिस इज वेयर आई एंटर्ड एंड एग्जिटेड क्विकली। सो आई विल कम टू द 50 मिनट्स चार्ट फर्स्ट। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जब सुबह ये फॉल हुआ, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किए 2 3 हज़ार के आसपास। एंड उसके बाद ये एक कैंडल आई, ये एक कैंडल आई, और ये एक कैंडल आई। सो ये 3 कैंडल ने दिखाया कि मार्केट इज पुशिंग टुवर्ड्स द अपसाइड, और ये जो कैंडल आई थी उसके मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी ज़रा। एंड दिस शोड अस कि मार्केट इज इन अ बुलिश मोमेंटम, अ वेरी गुड बुलिश मोमेंटम। एंड यहाँ पे देखेंगे हम तो
This is also expanding candle. So I drop down to the 5 minutes. 5 minutes पे अगर हम आते हैं तो we could clearly see here that okay, yeah, this is an overlapping FVG, or you can take this as a whole FVG also. Okay, so this is our FVG. ये FVG हमने मार्क किया 5 मिनट्स पे, एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि लोग क्या करेंगे कि मार्केट अभी सेल साइड में चल रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आया और इस पे आएंगे तो मार्केट लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे, एंड उसके बाद इवेंचुअली उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। बट ये करना सही नहीं है, क्योंकि वी हैव टू नो आवर बायस, ये कहाँ तक जाएगा नीचे। सो हमको पता था कि ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट जाएगा, और यहाँ से जैसे डिस्प्लेसमेंट आया, हमने इस लेवल पे हमने हमारा बाइंग एंट्री बना ली, एंड यहाँ पे हमने बाइंग एंट्री बना ली क्योंकि वी नो कि यहाँ से अभी और जो डायरेक्शन है मार्केट का वो चेंज होगा, टेम्प्ररी क्यों ना हो पर चेंज होगा। डेली बेसिस के लिए, डेली इंट्राडे करने के लिए बहुत था ये मोमेंटम। सो अगर हम आते हैं 1 मिनट पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो दिस इज वेयर यू सी 11 4 की कैंडल ये वाली, एंड यहाँ पे टैप करते ही हमने ना बाइंग कर ली। फर्स्ट लॉट यहाँ पे ऐड हुआ, उसके बाद 11 बजे 6 मिनट पे यहाँ पे एक लॉट ऐड हुआ, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे आया और यहाँ से रिजेक्ट किया मार्केट ने बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया, एंड हमने एग्जिट किया था एट ओके, यस, 11 बज के 12 मिनट पे हमने एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को, विद 30 पॉइंट्स कैप्चर हमने किए। अब इसमें 30 पॉइंट्स ये कैप्चर किए, आई विल शो यू। ये ट्रेड आराम से यहाँ तक का था, एंड बाद में ये देखो हुआ भी है टारगेट में। बट ये जो एरिया था ना, यहाँ पे जो प्रीमियम डीके होता और यहाँ पे जो टाइम वेस्ट होता, सो उस वो हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे कॉलेज भी रहता है, सो आई हैव टू गो टू कॉलेज, एंड बिफोर दैट आई हैव टू क्लोज माई ट्रेड्स ऑल्सो। सो फॉर दैट फॉर दैट रीज़न, जैसे ही मार्केट ये लेवल पे आया, this was acting as a good resistance level. So as soon as the market tapped that level, मुझे मैंने मिटिगेशन ब्लॉक जैसे देखा है, बट लोअर टाइम फ्रेम में तो लोअर टाइम फ्रेम के जैसे ही वर्क करेगा। इधर टैप किया, रिट्रेस हुआ, टैप किया, रिट्रेस हुआ, टैप किया, रिट्रेस हुआ, एवेंचुअली वो तोड़ के मेन टारगेट हमारा दे दिया। एंड यहाँ पे 11 बज के 12 मिनट पे इसी कैंडल पे मैंने बुक किया, जैसे ही मैंने ये रेड देखी उससे पहले ही मैंने बुक कर डाला, एंड दिस इज हाउ वी हैव बुक्ड 8,000 रुपीज इन टुडेज ट्रेड। एंड this was my trade recap for today, and this is the last trading day, and we have closed in a very good profits of 8,000 rupees. And I will hope the best for you in the new year, and I hope that I also get funded with my 10K account in the next year. So that's for today. I will see you in the next video.